I am Dr. Samra Fatima, Department of Amraaz, Ajmal Khan Tibiya College, Aligarh Muslim University, Aligarh. Uh, on behalf of Department of Amraaz, I welcome you all in the second day of CME. As first day of the CME was very fruitful, and I believe today it will go very well. Today, our first resource person of the day is Dr. Shoeb Ahmad sir. He is currently working as Assistant Professor in Department of ofMoalajat, School of Unary Medicine and Medical Research, Jamia Hamdard, New Delhi. Sir has more than 10 years of teaching experience. Sir has attended 15 workshops and 37 conferences. He served as life member of IRCS, SOPI, and AITC. Sir has represented more than 20 papers in the national and international conferences. He is ex-member of Amnesty International. Sir has chaired various conferences. He published 21 papers and articles so far. A.M.U is a book which is published under his name. So I would like to request Dr. Shoeb Ahmad sir on the dais, and he will be presenting on the topic Etiopathophysiology of Hypertension. First of all, I would like to thank our organizer who provided me golden opportunity to express my thought on pathophysiology of hypertension. हाइपरटेंशन के बारे में हम सब जानते हैं कि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा जो है या कह लीजिए तो बहुत ही क्रूशियल डिजीज है और ये बीमारी जितनी कहते हैं तेजी से जो है फैल रही है या इसका ऑनसेट इतनी तेजी से हो रहा है मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में ये मोर देन 2/3 जो है कहते हैं लोगों को ये मुतासिर करेगा। इस वक्त जो है वो 37% इंडियंस हाइपरटेंशन में मुब्तला हो चुके हैं और आने वाले 10-20 सालों में शायद ये 50% से ज़्यादा हो जाए। So it is very important disease. So we have to develop good understanding about hypertension as a physician and as a teacher. So what is hypertension? Hypertension is a state of clinical condition in which the blood vessels have persistently raised pressure. Blood pressure is created by the force of blood pushing against the walls of blood vessels, that is arteries, as it is pumped by the heart. The higher the pressure, the harder the heart has to pump. Hypertension is a serious medical condition and can increase the risk of heart, brain, kidney, and other diseases. It is a major cause of premature death worldwide. The burden of hypertension is felt disproportionately in low and middle income countries, where 2/3 of cases are found, largely due to the increased risk factors in those population in recent decades. Key points of hypertension. Most of hypertensive, that is 1.3 billion, living in low and middle income countries. As estimated, 46% of adults with hypertension are unaware that they have the condition or hypertension. Less than half of adults, that is 42% with hypertension, are diagnosed and treated. Approximately 1 in 5 adults, that is 21% with hypertension, have it under control. Hypertension is directly responsible for 57% of all stroke deaths and 24% of all coronary heart percent of the global adult population, that is around 1.3 billion people, had hypertension. And according to criteria, that is European criteria, systolic blood pressure 140 and diastolic blood pressure 90 mmHg से ज़्यादा अगर होता है. The prevalence of hypertension among adults was higher in low middle income countries than in higher income countries. This is very dangerous condition. जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें हाइपरटेंशन का प्रिवेलेंस बढ़ रहा है.
Prevalence in India. In India, its prevalence is increasing. In 2000, it was 118 million, and in 2030 it will be 214 million. तो विद इन 30 इयर्स आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन, डबल जो है जाते हैं प्रिवेलेंस हो जाएगा हाइपरटेंशन का इन इंडिया। 16.32% men and 11.56% women are hypertensive according to 2021 report in India. Urban residents are more prone compared to their rural counterparts. Hindu and Muslims are less prevalent as compared to other religious communities. Married men and women ratio is 21.13. Sikkim's women and men are highly prevalent, and Delhi's women and men have least prevalence of hypertension. Regulation of blood pressure. Systemic and local blood pressure must be maintained to maintain health. सिस्टेमिक एंड लोकल ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल रेंज में मेंटेन होनी चाहिए अगर हम हेल्दी लाइफ चाहते हैं। हाइपोटेंशन रिजल्ट्स इनटू इनएडुकेट ऑर्गन परफ्यूजन, organ dysfunction and leads to death. Conversely, hypertension causes vessels and end organ damage and is one of the major risk factors of atherosclerosis. Both of these are influenced by multiple genetic and environmental factors. Integration of various inputs needs appropriate systemic perfusion despite regional demand differences. यहाँ पे कार्डियक आउटपुट को अगर देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट से जो है कार्डियक आउटपुट जो है वो मेंटेन होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम से फीलिंग प्रेशर जो है, फीलिंग प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को। जितना ज़्यादा फीलिंग प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। फीलिंग प्रेशर सोडियम होम्योस्टेसिस से मेंटेन होता है और ब्लड वॉल्यूम से जो है मेंटेन होता है। ब्लड वॉल्यूम एंड सोडियम होम्योस्टेसिस मिलकर के फीलिंग प्रेशर बढ़ाते हैं। फीलिंग प्रेशर से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट दोनों बढ़ता है तो फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगर इसके साथ अगर हार्ट रेट भी बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखें कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसे मेंटेन करने के लिए नीचे देखें कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बढ़ाया जाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड वेसल्स के हैं उनके अंदर जो है क्या कहते हैं मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ता है, यानी मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है। इसके अलावा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ाना पड़ता है और उसके लिए एल्डोस्टेरोन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दिस इज रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वॉल्यूम। दूसरा जो पार्ट है दैट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस तब बढ़ेगा जब वासोकंस्ट्रिक्शन होगा और वासोकंस्ट्रिक्शन के लिए एंजियोटेंसिन सेकंड का सिक्रीशन ज्यादा करना पड़ता है एंड दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एक पार्ट है। इसके अलावा कैटेकोलिन्स का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाता है, थ्रोम्बोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाता है, एंडोथेलिन का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ न्यूरल फैक्टर्स होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। उससे क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आप ऊपर वाले पिक्चर्स को देखें, पार्ट ऑफ द पिक्चर्स को, इसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करना रहता है यानी वासोडाइलेटेशन करना रहता है। तो वो सारी चीजें जो है क्या कहते हैं बॉडी को चाहिए जो वासोडाइलेशन को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन है, काइनिन्स है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक्स पेप्टाइड्स है, एएनपी है, न्यूरल फैक्टर्स है जिसमें जो बीटा एड्रेनर्जिक के थ्रू काम करता है। दूसरा जो पार्ट है कार्डियक आउटपुट का, उसमें क्या है कि सबसे पहले ब्लड वॉल्यूम कम करना रहता है। ब्लड वॉल्यूम कम करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, हार्ट रेट कम करनी पड़ती है, प्लस मायोकार्डियम का जो
कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम करना पड़ता है, यानी वीक करना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक वन साइडेड बढ़ने लगे, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला जो है बढ़ने लगे, है ना, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। नीचे वाला अगर बढ़ने लगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये साइकिल है, प्रोसेस है। इट इज रेगुलेटेड प्रीडोमिनेंटली, आई मीन पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में, it is regulated predominantly at the level of arterioles by neural and humoral inputs. Vascular tone reflects a balance between the actions of vasoconstrictor and vasodilators. Blood vessels also exhibit autoregulation. At the time of increased blood flow, vasoconstriction develops to protect tissue against hyperperfusion. Finally, blood pressure is fine-tuned by tissue pH and hypoxia to accommodate local metabolic demand. Risk factors, modifiable risk factors includes unhealthy diet that includes excessive salt consumption, more than 5 gram salt consumption जो है, and next है diet high in saturated fat and trans fats, लो इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स जो है वो आमतौर से जो है लोग नहीं खा रहे हैं, है ना, या कभी कम खा रहे हैं जितना खाना चाहिए। जो गाइडलाइन है वो 500 ग्राम जो है पर डे फ्रूट्स खाने की है। अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से निजात चाहते हैं तो आपको डेली जो है 500 ग्राम फ्रूट्स खाना चाहिए along with green vegetables। ठीक है, तो लो इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी, इट इज वेरी कॉमन। आई थिंक 90% लोग जो है फिजिकली इनएक्टिव है। ठीक है, कार से घर से कार में, कार से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट से कार में, कार में से डिपार्टमेंट, है ना। इसके अलावा जो है और कोई मूवमेंट नहीं है, ना कोई स्पोर्ट्स है, ना कोई गेम है, ना मॉर्निंग वॉक है ना, ना ही कोई और फिजिकल एक्टिविटीज है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेट बढ़ रहा है, बीएमआई बढ़ रहा है, नतीजे में जो है हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, है ना, इसके प्रिवेलेंस बढ़ रहा है। These are the factors which are responsible for developing hypertension in urban population। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल इनएक्टिविटी एंड कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। Benign overweight or obese, being overweight or obese। Non-modifiable risk factors में है family history of hypertension, age over 65 years, comorbidity with diabetes mellitus and kidney diseases। Types of hypertension, essential hypertension, 90 to 95% hypertension is essential in nature and it has no definable cause or causes and also known as primary or idiopathic hypertension। Secondary or renal hypertension accounts only 5 to 10% of total hypertension and it is always secondary to any disease or diseases and is also called as secondary hypertension। Classification of secondary hypertension based on etiology। So first and very common type of secondary hypertension is renal hypertension and that is due to parenchymal or renovascular defect। And next is endocrinal hypertension। इसमें प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है and next is Cushing syndrome and next pheocytochroma, oral contraceptive induced hypertension। इसके अलावा तीसरा और चौथा है कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन एंड न्यूरोलॉजिक हाइपरटेंशन। ये दोनों मिलकर के 0.2% ऑफ टोटल हाइपरटेंशन को अकाउंट करते हैं। ठीक है, बिनाइन हाइपरटेंशन में कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल कोर्स, दैट इज बिनाइन हाइपरटेंशन and it is characterized by moderate elevation of blood pressure and the course is slow over years। course is slow
ओवर ईयर्स, कई साल लगते हैं डेवलप होने में. About 90% patient of hypertension have benign hypertension. Yeah. Next, malignant hypertension, and it is marked and sudden increase of systolic blood pressure more than 200 mmHg and diastolic blood pressure more than 140 mmHg. In known cases of hypertension are in a previously normotensive individual. ज़्यादातर जो पहले से हाइपरटेंशन में उनके अंदर जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन डेवलप होता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि रेयरली या इन अ वेरी फ्यू केसेस नॉर्मल सब्जेक्ट्स में भी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज प्रिवेलेंट. नेक्स्ट है triggers of essential hypertension. Although the specific triggers are unknown, essential hypertension में नो नोन कॉज होता है, तो इसलिए जो है हम किसी कॉज को रूल आउट नहीं कर सकते, सिर्फ फैक्टर्स को देखते हैं जो इसे ट्रिगर करते हैं, जिनकी वजह से essential hypertension डेवलप होता है. Although the specific triggers are unknown, it appears that both altered renal sodium handling and increased vascular resistance contribute to essential hypertension. Following triggers are crucial. Number one, arterial pressure, either peripheral or central adrenergic. Next is renal, and kidney secretes renin through renin-angiotensin system. And next है hormonal aldosterone, increased vascular resistance, environmental and salt sensitivity. Mechanism of essential hypertension अगर आप देखें तो सबसे पहले reduced renal sodium excretion. In the presence of normal blood pressure, it is key pathologic feature. Indeed, it is a common etiologic factor in most forms of hypertension, either essential hypertension or secondary hypertension. It leads an obligatory increase in fluid volume and increased cardiac output to elevate blood pressure. है ना? क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है. At the new high BP, the kidneys excrete additional sodium ion. Thus, a new steady state of sodium excretion is achieved, but at the expense of an elevated blood pressure. तो जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो उस लेवल पे फिर जो है सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ेगा, है ना, और फिर जो है क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर जो है फर्दर जो है क्या कहते हैं एलिवेट होगा. इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस देखें अगर आप तो वासोकंस्ट्रिक्शन या स्ट्रक्चरल चेंजेस इन वेसल वॉल होता है, या तो वासोकंस्ट्रिक्शन हो या जो आर्टरीजुअल्स हैं उनके वॉल के अंदर जो है क्या कहते हैं चेंजेस हो, और उसके नतीजे में वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा. वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. इसके अलावा एक और रूट हो सकता है जिससे क्रॉनिक वासोकंस्ट्रिक्शन होता है. अगर किसी को आर्टरीजुअल क्रॉनिक वासोकंस्ट्रिक्शन होता है तो इस वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से उस वेसल वॉल के अंदर परमानेंट थिकनिंग डेवलप हो जाती है. परमानेंट थिकनिंग डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि वास्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, परमानेंटली बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है. तो दीज आर टू रूट्स. जेनेटिक फैक्टर्स हैं. Genetic factors play an important role in determining blood pressure by family clustering of hypertension and by studies of monozygotic and dizygotic twins. In a small proportion of cases of essential hypertension, there is linkage of specific angiotensinogen polymorphism and angiotensin second receptor variants. Polymorphism of the renin-angiotensin system also may contribute to the known racial differences in blood pressure regulation. Susceptibility genes for essential hypertension is in vast majority of cases are still unknown, but following genes are identified. इसमें सबसे पहला genes related to angiotensin. Angiotensin से एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा. एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. इसके अलावा
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से रिलेटेड जीन्स हैं, है ना। जितना एसीई होगा उतना ही ज्यादा एंजियोटेंसिन ई का फॉर्मेशन होगा और उतनी ही ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा एल्डोरोन सिंथेज एंजाइम है, इसका जो है क्या कहते हैं, अगर सिंथेसिस ज्यादा होती है तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो वो जीन्स जो इन चीजों को जो है मुतासिर करती हैं या इनसे रिलेटेड जो है स्ट्रक्चर को या केमिकल को प्रोड्यूस करती हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में रोल करती है। इसके अलावा 2 मोर जीन्स आर आइडेंटिफाइड। नंबर 1 जीन्स फॉर कैलिकिरीन, ये यूरिन कैलिकिरीन को घटाता है और हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। So these are 5 genes which have been identified in elevation of hypertension. Next is environmental factors. Many environmental factors are known to modify the impact of genetic determinants to develop hypertension, such as stress. Stress is very important. Next is obesity, smoking, physical inactivity, high level of salt consumption, and chronic alcoholism, as stated earlier. Secondary hypertension, it is least prevalent and contributes 5 to 10% of total. This is also explained. Now stages of hypertension. Hypertension को आप कितने stages में divide कर सकते हैं? This is according to American Heart Association or American College of Cardiology, that was published in 2017. ठीक है, इन्होंने नया क्राइटेरिया दिया, यूरोपियन क्राइटेरिया, इसके 1 साल के बाद 2018 में पब्लिश हुआ, और वो जो है क्या कहते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे उन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 130 to 40 नॉर्मल रेंज में रखा और 90 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रखा है। यहाँ पे वो शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है उसको हम शो कर रहे हैं। तो नॉर्मल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम है तो नॉर्मल है ना। और अगर 120 और 129 के बीच सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी का हो गया है तो इट इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन में स्टेज 1, अगर 130 से 139 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी का है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 90 के बीच हो गया है, देन इट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। Next is stage 2 hypertension, more than 140 mmHg systolic blood pressure or more than 90 mmHg diastolic blood pressure, then it is stage 2 hypertension. Next है mechanism of secondary hypertension. Based on identifiable etiology mechanism, secondary hypertension are described under 4 headings. Number 1, renal hypertension, endocrine hypertension, hypertension associated with coarctation of aorta, and hypertension due to neurogenic causes. Mechanism of renal hypertension. Renal hypertension is further subdivided into 2 groups. Number 1, renovascular hypertension. It develops due to occlusion in a major renal artery. किसी renal artery, major renal artery में occlusion हो जाए, जैसे renal artery stenosis हो जाए. Next है pre-eclampsia during pregnancy, eclampsia, polyarteritis nodosa, fibromuscular dysplasia of renal artery. Next है renal parenchymal hypertension. It develops in following diseases: various types of glomerulonephritis and pyelonephritis, diabetic nephropathy, amyloidosis, polycystic kidney disease, and renal producing tumors. Renal producing tumors. In either case, renal hypertension can be produced by one of the following 3 interrelated mechanisms. Number 1, activation of renin-angiotensin system, that is RAS. Next is sodium and water retention, and next is release of
pressure materials. Next, activation of renal angiotensin system. Renin angiotensin system किस तरह से एक्टिवेट होता है? Renin is a proteolytic enzyme produced and stored in the granules of the juxtaglomerular cells. It releases its release is stimulated by renal ischemia, sympathetic nervous system stimulation, reduced sodium concentration, fluid depletion, and decreased potassium ion intake. This is the chart. आप देख रहे हैं कि लीवर में एंजियोटेंसिनोजन का प्रोडक्शन होता है. एंजियोटेंसिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 and that is reached to the lungs, and in lungs in the presence of angiotensin converting enzyme ACE it is converted in angiotensin second. एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये वासोकंस्ट्रिक्टर होता है और इसकी वजह से जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर कंस्ट्रिक्टेड. उससे क्या होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है. एंजियोटेंसिन जो है एक और काम करती है कि एंजियोटेंसिन दो तरह से काम करती है. एक तो ये कि इसने वासोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर बढ़ाया. दूसरा क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, किडनी को इन्फ्लुएंस करता है. एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ाता है. एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी उसको जो है क्या कहते हैं? बढ़ाता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को. तो जब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो उससे क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है ना. ब्लड का कंटेंट बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है. तो दो तरह से जो है ये एंजियोटेंसिन सेकेंड काम करता है. के बारे में बात कर रहे थे. तो एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल ग्लैंड को जो है इन्फ्लुएंस करके एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन करता है और एल्डोस्टेरॉन जो है वो किडनी से सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करता है. उसके साथ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो एक तरफ वासोकंस्ट्रिक्शन होता है इस सिस्टम के नतीजे में, एक्टिवेशन के नतीजे में, और दूसरा क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना होता है. फर्स्ट रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड को अगर आप देखें यहाँ पे समराइज किया है. एंजियोटेंसिन नोजन इन लीवर, इसका केमिकल नेचर अगर आप देखें तो इट इज एन अल्फा 2 ग्लोबुलिन. Angiotensinogen is converted into angiotensin 1 by renin in the lungs, and angiotensin 1 is a decapeptide in capital. Next is angiotensin second, that is converted by ACE, and angiotensin is the most potent naturally occurring octapeptide vasoconstrictor. And angiotensin second develops peripheral arterial vasoconstriction, and that develops hypertension. Next role of angiotensin second देखें अगर आप तो it stimulates adrenal cortex via AT1 receptor. नंबर उसके बाद जो है रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, और एल्डोस्टेरॉन प्रमोट्स करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एंड दिस रेजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, एंड डेवलप्स हाइपरटेंशन. तो ये दो जो है क्या कहते हैं इसके रोल हैं. नाउ समरी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. इट कंट्रोल्स बीपी बाय altering plasma concentration of angiotensin second and aldosterone. It regulates sodium and water content, and it regulates our potassium balance. Next is sodium and water retention. Blood volume and cardiac output both are related with blood
pressure and regulated by blood sodium level, which maintains extracellular fluid volume. Sodium level of blood is regulated by three ways. Number one, release of aldosterone from renin-angiotensin system, stated earlier. Second is reduction in GFR, glomerular filtration rate, that is 125 ml per minute. It occurs due to reduced blood flow as in reduced renal mass or renal artery stenosis. या तो रीनल मास हो जाए, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाए, जिससे क्या होगा कि हाइपो परफ्यूजन ऑफ किडनी होगा और नतीजे में जो है जीएफआर कम हो जाएगा. दिस रिजल्ट्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. नेक्स्ट इज एट्रियोपेक्टिन हार्मोन. एट्रियम ऑफ द हार्ट से जो है ये हार्मोन सिक्रीट होता है and causes increased GFR and inhibits sodium reabsorption. ये GFR को बढ़ाता है और सोडियम reabsorption को कम करता है. एट्रियोपेक्टिन हार्मोन. Release of vasodepressor materials. A number of vasodepressor materials and antihypertensive counterbalance the vasopressor effect of angiotensin second. तो अगर एंजियोटेंसिन सेकेंड का सिक्रीशन ज़्यादा और फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसको काउंटर करने के लिए जो है ये कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके. दीज सब्सटेंसेज आर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, F2, A and medullin from medulla. Next is urinary kallikrein kinin system, platelet activating factors. These are important substances. Next is endocrinal secondary hypertension, and in this case, adrenal gland hormone is a very important cause. Primary aldosteronism, Cushing syndrome, adrenal virilism, and pheochromocytoma are main causes to develop secondary hypertension. Next is thyroid hormones. Hypothyroidism and hyperthyroidism, in both cases hypertension develops. Parathyroid hormones में hyperparathyroidism में it leads hypercalcemia and hypercalcemia की वजह से blood pressure बढ़ता है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट कॉज इन आज के जो है सोसाइटी में, आज के जो कल्चर में ओरल कंट्रासेप्टिव जो है वो बहुत कॉमनली यूज की जा रही है. तो उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. उसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन कंटेंट होता है ओरल कंट्रासेप्टिव का, ये क्या करता है कि हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ रेनिन सबस्ट्रेट को बढ़ाता है. इससे क्या होता है कि रेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. रेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है. नेक्स्ट है कोआर्डिनेशन रिलेटेड हाइपरटेंशन. कोआर्डिनेशन ऑफ एओर्टा के नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इट कॉजेस सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन इटसेल्फ. तो कोआर्डिनेशन ऑफ एओर्टा का जो कॉमनेस्ट साइट है वो हम सब जानते हैं कि जो तीन मेजर जो है क्या कहते हैं ब्रांचेस होती हैं आर्च ऑफ एओर्टा की. उसमें जो पहली जो है क्या कहते हैं ब्रांच होती है उसके आसपास जो है कोआर्डिनेशन एओर्टा डेवलप होता है. उससे क्या होता है कि बाकी का जो एओर्टा होता है वो फ्री होता है. तो उससे पहले जितने भी आर्टरीज निकलती हैं, मेजर आर्टरीज जिससे दोनों ब्रेकियल जो है हमारी जो है ब्रेकियल आर्टरीज बनती हैं, कैरोटिड आर्टरीज बनती हैं, है ना, उससे पहले की आर्टरीज बनती हैं, इनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमोरल या जो है क्या कहते हैं ऑप्टिकल आर्टरी या कार्सिनिस पेडिस आर्टरी. ठीक है. तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है. तो अगर आप पैर का हाइपर ब्लड प्रेशर लेंगे तो कम होगा, हाथ में ब्रेकियल आर्टरी का ब्लड प्रेशर लेंगे तो ज़्यादा होगा. ठीक है. It causes systolic hypertension in the upper part, and diastolic blood pressure results due to changes in circulation. Next is neurogenic hypertension, I mean secondary hypertension. It is uncommon, and the causes are psychogenic, polyneuritis, increased intracranial pressure, and section of spinal cord. किसी वजह से spinal cord कट हो जाए. Next is effect of hypertension. Hypertension का effect क्या है?
हाइपरटेंशन तो खुद एक बीमारी है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं दे आर मोर सीवियर एंड मोर क्रूशियल एंड लाइफ थ्रेटनिंग समटाइम्स. Patient with hypertension die prematurely due to heart disease, stroke and renal failure. आपने देखा कि सडन कार्डियक डेथ जो है वो कितना ज्यादा होता है. अब ये देखा गया कि अगर 20 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे 35% इस्कीमिक स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है ना. ओनली 20 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने से 35% जो है स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. इसके अलावा 10 mmHg ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में तो 45% एब्डोमिनल एन्यूरिज्म का रिस्क बढ़ता है, यानी एब्डोमिनल एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है इन केस ऑफ डायस्टोलिक हाइपरटेंशन. Next is 20 mmHg in systolic blood pressure and 10 mmHg in diastolic blood pressure increase from 120 by 180 mmHg increases 2.6 fold in stage renal diseases. अगर दोनों बढ़ रहा है ना, सिर्फ 20 और 10 के रेशियो में बढ़ रहा है, वो भी 120 से 80 से बढ़ रहा है, यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 और 90 mmHg है तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है कहते हैं रीनल डिजीजेस के होने के चांसेस 2.6 और 3 फोल्ड ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, है ना. तो ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ 130 तक है तो ये कहना कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल है, ये सब हमें समझना पड़ेगा एज ए फिजिशियन, है ना. क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली जो है क्या कहते हैं हमें मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन पे जो है ध्यान देना पड़ेगा, है ना. और उसके लिए क्या है कि आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा. हर साल नई नई जो है क्या कहते हैं गाइडलाइंस आती हैं, नए नए पेपर पब्लिश होते हैं, नए नए काम हो रहे हैं, तो उनसे हमें फैमिलियर होना पड़ेगा, है ना, ताकि हम अच्छी तरह से अपना रोल प्ले कर सकें सोसाइटी में. अगर हम सिर्फ हाइपरटेंशन और डायबिटीज के माहिर बन जाए दो बीमारियों को, तो हम किसी भी शहर में एक लीडिंग प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, क्योंकि 37% लोग हाइपरटेंसिव हैं. अगर आपके शहर में 10 लाख लोग हैं, है ना, तो 10 लाख लोगों का मतलब है कि 4 लाख लोग हाइपरटेंसिव होंगे, है ना. अगर एडल्ट 10 लाख हैं तो उसमें 4 लाख लोग जो है वो हाइपरटेंसिव होंगे, और 4 लाख लोगों में से अगर आप 50,000 भी आ जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो आप बहुत पूरी लाइफ ऐश करेंगे, है ना. तो इसके लिए क्या है कि आपको कंप्लीट नॉलेज अर्न करना है ना. ये मत सोचिए कि यू आर यूनानी फिजिशियन, है ना. नॉलेज किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. यू कैन लर्न एनीथिंग इफ यू कैन, है ना, इफ यू वांट. नेक्स्ट इज middle and late life hypertension is also associated with 41 to 62% increased risk of dementia. बूढ़े लोगों को अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, उनको भूलने की बीमारी हो जाएगी, है ना. फिर वो पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे, कभी भी घर छोड़ के भाग सकते हैं. जैसा भी एक केस हुआ आपने मध्य प्रदेश में देखा कि वो अपने फैमिली से जो है वो बिछड़ गए और उनको जो है क्या कहते हैं उनकी लिंचिंग कर दी गई, है ना. तो इस तरह के केसेस बहुत सारे देख रहे हैं. हमने दिल्ली में देखा है कि हर हफ्ते किसी ना किसी सीनियर सिटीजन का फोटो लिखा रहता है मिसिंग, एंड दैट इज ओनली ड्यू टू डिमेंशिया. घर से निकलते हैं लेकिन याददाश्त ना होने की वजह से वो अपना घर का रास्ता भूल जाते हैं और फिर वो खो जाते हैं, ठीक है. तो इसकी वजह क्या है कि ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है या किया नहीं जा रहा है. फॉल्ट दोनों जगह हो सकती है, ऑन फिजिशियन एंड ऑन पेशेंट, ठीक है, दोनों जगह हो सकती है. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन ऑन हार्ट. Left ventricular hypertrophy due to excessive workload imposed by increased systemic pressure. सिस्टेमिक प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है. हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टेमिक पंपिंग, तो उसका हाइपरट्रॉफी हो जाती है. जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल मास बढ़ जाता है. मसल मास बढ़ने की वजह से उसको ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है. तो जब कभी भी हम इस कंडीशन में हमारी बॉडी आती है कि जब हार्ट को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है
तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड उतना एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल नहीं पाता है, जिसके नतीजे में लेफ्ट वेंट्रिकुलर इस्कीमिया होता है और उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंजाइना पेक्टोरिस इज may develop। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन ऑन नर्वस सिस्टम। In long-standing hypertension, the neurologic effects can be divided into retinal and central nervous system changes। नंबर वन, retinal hemorrhage हो सकता है, exudates and papilledema हो सकता है, स्कोटोमा, ब्लड विजन एंड ब्लाइंडनेस हो सकती है, ऑक्सीपिटल हेडेक हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, डिजीनेस वर्टाइगो टिनाइटिस हो सकता है, सेरिब्रोवास्कुलर अटैक्स हो सकते हैं, सेरिब्रल इंफार्क्शन हो सकता है, हाइपरटेंसिव इनकेफेलोपैथी हो सकती है। Effects of hypertension on the kidneys due to atherosclerotic changes of afferent and efferent arterioles following changes occur, reduced GFR and tubular dysfunction, proteinuria, microscopic hematuria, and finally renal failure। Now the diagnosis of secondary hypertension। Certain clues from history। एक्चुअली क्या है कि हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन चूंकि ये बहुत ही कम परसेंटेज में होता है, 5 to 10% ऑफ टोटल हाइपरटेंशन, तो हम इसे जो है क्या कहते हैं, ऐसे सस्ते बना लें, इग्नोर ना करें, बल्कि इसे थारोली इन्वेस्टिगेट करें, है ना। इसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? Certain clues from the history, physical examination, and basic laboratories studies may suggest an unusual cause for the hypertension and dictate the need of special studies। Abrupt onset of severe hypertension and or hypertension in younger less than 25 years or over 50 years need testing for renovascular hypertension and pheochromocytoma। इसमें हिस्ट्री आपको लेनी है पहले, और हिस्ट्री में देखना है कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है। उस क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आपको जो है क्या कहते हैं, डायग्नोसिस को जो है क्या कहते हैं, एम करना है और फिर कंसर्न जो है इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है 25 साल की कम उम्र में एब्रप्टली बढ़ जाता है ना, या फिर 50 ईयर से ज्यादा है, अभी नॉर्मल टेंसिव था, एक हफ्ते बाद पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर 160-70 हो गया है, तो दिस इज एब्रप्ट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इस केस में यू कैन सस्पेक्ट रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन एंड फियोक्रोमोसाइटोमा इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन जो है उसी के हिसाब से करना है। नेक्स्ट केस हो सकता है कि हिस्ट्री ऑफ हेडेक मिले आपको, पाल्पिटेशन मिले, एंजाइटी मिले, अनयूजुअल स्वीटिंग मिले, हाइपरग्लाइसीमिया एंड वेट लॉस, देन टेस्ट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। एपिसोडिक हाइपरटेंशन जो होता है ये जो है फियोक्रोमोसाइटोमा का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इन अ फ्यू केसेस एपिसोडिक हाइपरटेंशन जो है फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं भी मिलता है। ठीक है, now test for Cushing syndrome, a 24 hours urine test for cortisol and creatinine and plasma cortisol level 9 to 12 hours after administration of 1 milligram of dexamethasone at bedtime। रात में सोते वक्त 1 मिलीग्राम का डेक्सामेथासोन से दे दें और उसके 9 से 12 घंटे के बाद सुबह में आप इसका इन्वेस्टिगेशन करें। नेक्स्ट है यूरिन कॉर्टिसोल लेस देन 100 माइक्रोग्राम और प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल लेस देन 5 माइक्रोग्राम और डायग्नोस्टिक ऑफ Cushing syndrome। For renovascular hypertension, rapid sequence intravenous pyelography was the choice of investigation in past, but now more developed investigations are available to diagnose renovascular hypertension। Number one is captopril enhanced radionuclide renal scan, and next is a duplex Doppler flow study, and next is MRI angiography। For primary aldosteronism, हाइपोकैलिमिया अगर है, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल
are key to diagnose it. Measurement of a 24 hours plasma renal level may be important for therapeutic and prognostic reason. तो इसमें आपको एल्डोस्टेरॉन लेवल, सीरम एल्डोस्टेरॉन लेवल कराना है, रेनिन का लेवल देखना है और पोटेशियम लेवल देखना है। ठीक है। नाउ द क्राइटेरिया, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे ये चीज दिखाना है कि गोल ऑफ ट्रीटमेंट जो है या मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन जो है वो सेम है, चाहे वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्राइटेरिया हो चाहे यूरोपियन क्राइटेरिया हो। दोनों ये कहती है कि जब भी आप ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हमेशा इस बात पे नजर रखें कि उसका ब्लड प्रेशर 130 mmHg से ज्यादा ना होने पाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 mmHg से ज्यादा ना होने पाए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर ट्रीटमेंट के बाद ये गोल अचीव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके दवाई का असर उस पर नहीं हो रहा है। देन यू हैव टू लुक ऑन द फैक्टर्स जो प्रोग्नोसिस को जो है अल्टर कर सकती हैं, वो फैक्टर्स हैं, उन पे आपको नजर दौड़ानी पड़ेगी और उन फैक्टर्स को रूल आउट करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस।